Shalom, shalom, shalom. Praise the blessed name of the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus Christ, the King of glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Lord Jesus. Worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless your holy name, King of glory. We give you praise, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth, we give you praise. We give you praise, Lord Jesus of Nazareth. Lord Jesus of Nazareth, we give you praise. Hallelujah, hallelujah. Give you praise, Jesus of Nazareth. Give you praise, give you praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless you, King of glory. We magnify your name. We magnify your name. We magnify your name. We magnify your name. Magnify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we bless your holy name. Lord Jesus, we bless your holy name. Lord Jesus, we magnify you. We glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. Bless you, Lord. Bless you, bless you, bless you, bless you. Bless your name. Hallelujah. We bless your name, Lord Jesus. Bless your name, Lord Jesus. सबको जय मसीह की. हालेलुया. The Lord bless you. Hallelujah. Jesus, we give you praise. Lord Jesus, we give you praise. Hallelujah. Lord Jesus, we give you praise. We give you praise.
We give you praise, Lord. We give you praise. We ascribe worship unto your name. We come to worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. आराधना करें प्रभु की. आराधना करें, प्रार्थना करें, वो सच्चा है, कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा. Lord, we bless your name. Lord, we praise your name. Lord, we magnify your name. Hallelujah. We bless you, Jesus of Nazareth. We bless you. We bless you, Jesus of Nazareth. We bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. We bless your holy name, Jesus of Nazareth. We bless your holy name, King Jesus. We bless your holy name, King of kings and Lord of lords. We bless your name. We bless your name, bless your name, bless your name, King Jesus. We 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 bless your name. Hallelujah. मैनू सताउंदे बेसबब तेरे ने सच्चे हुक्म सब. मेरी मदद तू कर ऐ रब. तुइयों ते हैं मेरी चट्टान. तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान. तेरे ही कॉल ते ऐ खुदा दिल थी मैं रखदा खाए मां. रखी तू नज़र मेर दी, बख्शी तू मैनू जिंदगी. रखी तू नज़र मेर दी, बख्शी तू मैनू जिंदगी. याद करांगा दिल से थी तेरियां सब शहादतां. तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी. Hallelujah. Father, we bless your holy name. Father, we magnify your name. We glorify your name. Hallelujah. We give you praise, Holy One of Israel. We give you praise. We give you praise, give you praise, Holy One of Israel.
We give you praise. We magnify your name. 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 Lord, we magnify your name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. We bless your name. We magnify your name. We magnify your name. Magnify your name. Magnify your name. Magnify your name. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We bless your name, Lord. We bless your name. We bless your name. We bless your name. 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 We bless your name, Lord. Hallelujah. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Hallelujah. Glorify you, Lord. Glorify, glorify, glorify your name. Glorify your name. Glorify your name, Lord. We glorify your name. Lord, we come into your presence through the blood of the Lamb. We come into your presence through the blood of the Lamb. We come into your presence through the blood of the Lamb. We come into your presence through the blood of the Lamb, through the blood, 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 through the holy blood, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, I pray for everyone that is connected now, for your mighty Spirit to come upon them, Lord, for your mighty hand, for your mighty anointing, Lord, for your mighty anointing of the Holy Spirit to move upon them. In the name of Jesus, in the name of Jesus of Nazareth, 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 Lord, Jesus, Jesus of Nazareth, Jesus, Jesus of Nazareth, Jesus, Jesus of Nazareth, Jesus, King of glory, Jesus, King of glory, Jesus, King of glory, Jesus, King of glory, hallelujah, 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 hallelujah. सब आराधना कीजिए, अपना मुंह खोलिए और आराधना कीजिए. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, King of glory. 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 Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. 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 Blessed be the name. We bless you, Jesus. We glorify your name. Glorify your name. We glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Jesus, we ask you to move upon our fellowship that we are having, Lord. Lord, I ask you to send your angels to all these sons and daughters of yours who are connected via internet, on Facebook, Lord. Dispatch your angels. Lord, may your people stand in the awe of your holiness. May they never make you familiar entity, but each day they stand in the awe. They move in your fear, Lord, in your sacredness, in your holiness. May they understand who you are, for you are a consuming fire, and it is a scary thing to fall into the hands of the living God. Father, pour out your grace over every heart. I pray, Father, over everyone that is connected. Lord, over Brother Lalit Mehra and his household, I ask you to pour out your favor and grace and kindness over Samina Ashraf, your grace and kindness and your favor over Devinder Kular, your grace and kindness over her husband, over her children, in the name of Jesus. Hallelujah. Over Jaswinder Singh Surinder, Lord, your kindness, grace and mercy. Lord, I speak your blessing and your favor over Brother Ravinder, over Brother Ravi Prakash Gupta, Lord. Bless him, bless his wife, bless his children, bless all that he does, prosper him, everything that he does, Lord. I pray for your blessing over Sabi Surjit and his household, his parents and his family, Lord.
Hallelujah. Lord, I also pray for Tony Mulia Song, that you bless him, that your spirit may minister to him, Lord. I pray for Amrish Kumar, that you bless him. Lord, bless his family, his household, bless everything that he does. Draw him, Lord, closer to you in the name of Jesus, I pray. I pray once again for Harpal Bajwa. Lord, you open the door for this brother. Open the door miraculously. Open the door for him. Bless his family, his wife, his children, Lord Jesus. Lord, I pray for Sandeep Lotus, for your hand over him and over his daughter, over his wife, over his household, Lord God. Lord, I also pray for Bahadur Singh Akash, that you bless him, that you stretch forth your hand over this man. Lord, I pray for Sagar Sutra. Bless this gentleman. Stretch forth your hand upon him. I pray for Prabdeep and his wife and his family, his father and mother, his sister. Lord, I pray, Lord, that you continue to draw this young man closer to your throne and closer to the foot of the cross, where loving Savior suffered, bled, died, and rose again. Lord, I pray for your favor and grace over Renu Samuel and over her family. Lord, over Lena Davidson, I speak blessing and anointing and favor. And I speak your mighty name over our household in the name of Jesus of Nazareth. Father, bless Rima Shamim. She just logged in. I pray that you bless her. I pray that your spirit will speak to her in the mighty name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Father, I pray for Malkiyat Gill. I pray for his family, pray for his household. You bless this gentleman. Bless brother Sahil from Pakistan. Bless his household. Bless his family, Lord, I pray thee. I pray for Ruby Sanghera from Britain. May you bless her. May you bless her household. Bless her family, her loved ones. Bless Renu Bala, Lord. I draw the hedge of the blood of Jesus over her, and I bind her with the covenant blessing, with the blessing of Abraham. Her soul, mind, spirit, body is bound to the blood covenant, hallelujah, that Jesus sealed, hallelujah, on the cross of Calvary. Thank you, Father. Lord God, we love you, we bless you, we praise you. Brother Raman Khan and his household we lift up before your throne of grace. हालेलुया, तेरे लहू की जय जयकार हो, तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, हालेलुया। तेरा धन्यवाद 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 हो प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज तेरे नाम की महिमा करते हैं। लॉर्ड, बी लिफ्टेड अप इन माई लाइफ, बी ग्लोरिफाइड इन माई लाइफ. May my life become a symphony of your praise. May my life become the lighthouse that will radiate your glory in these dark days. Lord, use my life. Take my life in your hands. Use my life for your glory, Jesus. Use my life for your glory, Jesus. King Jesus, use my life for your glory. King Jesus, use my life for your glory. Use these people who are online for your glory. Lord, may they not keep any part of their being, any part of their life from you. May they surrender their whole life, everything they are, everything they are composed of, everything they possess. May they surrender to you, Jesus. We love you. Lord, we love you. You said, if you love me, you will keep my commandments. Lord, we keep your commandments. We move in your commandments, Lord. Hallelujah. We live the life that our Lord Jesus lived. We want to continue his life. We want to live his life, not our own life. We want to live his life. For I have been crucified. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live, I live by faith of the Son of God. Not faith in the Son of God merely, but I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. We bless you, Father. We give you praise. We give you honor. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' mighty name, we pray this prayer. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं. And I want you to turn to 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter number 4. And beginning from verse number 1, let me read for you. 1 Corinthians chapter number 4, beginning from verse number 1. Hallelujah. 1 Corinthians chapter number 4, verse number 1.
So then let us be in, so then let us apostles be looked upon as ministering servants of Christ and stewards of the mysteries, the secret purposes of God. हालेलुया। प्रेरित पौलुस क्या लिख रहा है? बड़ी अद्भुत बात लिख रहा है प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में। पढ़िए, अपनी बाइबल में निकालिए, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का पहला वचन। मेरे पास ये पंजाबी वर्जन है, ये भी मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का पहला वचन क्या कहता है प्रेरित पौलुस? प्रेरित पौलुस ये कहता है सानू आदमी सानू इयों जाने। हालेलुया। क्या लिख रहा है प्रभु का दास? So then let us, I mean the apostle, be looked upon as, प्रभु का दास क्या कह रहा है कि हमें कैसे जाना जाए, क्या हमारी पहचान हो। हालेलुया। जैसे कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी इच्छा जाहिर करता है अपनी संतान पे कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी कब्र के ऊपर ये एपिटाफ लिखा जाए, इस तरह प्रेरित पौलुस एक इच्छा जाहिर कर रहा है। सो देन लेट अस, इन ब्रैकेट apostles, आई एम रीडिंग फ्रॉम एम्प्लीफाइड वर्जन, बी लुक्ड अपॉन एज मिनिस्टरिंग सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट एंड स्टूवर्ड्स, ट्रस्टीज ऑफ द मिस्ट्रीज, द सीक्रेट पर्पसेस ऑफ गॉड। प्रेरित पौलुस कह रहा है कि लोग हमें कैसे जाने? लोग हमें इस तरह जाने कि हम कौन हैं? हम जीवित परमेश्वर मसीह के सेवक हैं। हालेलुया। उसके मिनिस्टर्स हैं और परमेश्वर के भेद जो हैं, परमेश्वर के गहरे रहस्य, परमेश्वर के भेद पूर्ण पर्पसेस, परमेश्वर की भेद से भरी गहरी इच्छा, परमेश्वर की योजनाएं जो जगत के लिए और परमेश्वर की महान योजनाएं जो समग्र ब्रह्मांड के लिए हैं, उसके मुख्तियार हैं हम। मुख्तियार पंजाबी में लिखा है, लेकिन ओरिजिनल वर्ड है स्टूवर्ड्स, स्टूवर्ड, और ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। प्रेरित पौलुस कहता है हमें ओइकोनोमिया जाना जाए। आपको मालूम ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है और ये बहुत पावरफुल वर्ड है। ओइकोनोमिया जो यूनानी शब्द है, यहीं से अंग्रेजी का शब्द निकलता है इकॉनमी। इकॉनमी, पूरे देश के अंदर पैसे का चलन, पूरे देश के अंदर खाना, पूरे ब्रह्मांड में ले लीजिए, खाना पीना रहना, हर चीज़ इकॉनमी के संग जुड़ी है। अगर इकॉनमी कोलैप्स हो जाए तो सब कुछ चरमरा के गिर जाता है। सो द ग्रीक वर्ड इज ओइकोनोमिया। हम कौन हैं? स्टूवर्ड्स हैं, ओइकोनोमिया हैं। परमेश्वर का दास कह रहा है कि हम परमेश्वर के दास हैं, लेकिन हम परमेश्वर के गहरे भेद, परमेश्वर के गहरे रहस्य, इंग्लिश वर्ड है मिस्ट्री, लेकिन यूनानी शब्द है मिस्टीरियन, जिसका मतलब परमेश्वर के गहरे भेद, परमेश्वर के गहरे रहस्य, परमेश्वर की गुप्त बातें, परमेश्वर के गहरे मकसद, परमेश्वर की गहरी योजनाएं, परमेश्वर की गुप्त बुद्धि, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, परमेश्वर के गहरे प्रकाश, परमेश्वर की सारी छिपी हुई रूहानी चीज़ें, उसके हम क्या हैं? ओइकोनोमिया हैं, स्टूवर्ड हैं। पंजाबी में मुख्तियार लिखा है, इंग्लिश वर्ड है ट्रस्टी, जिनके हवाले यहोवा ने ये चीज़ें छोड़ी हैं। प्रेरित पौलुस अपने आप को ये कहता है कि ऐसे हमें लोग जाने कि परमेश्वर ने अपने गहरे रहस्य, गहरे भेद, गहरी योजनाएं, ओइकोनोमिया, अपने राज्य की इकॉनमी हमारे हाथों में सौंपी है। हालेलुया। क्या आप ऐसे समझते हैं परमेश्वर के सच्चे दासों को? और क्या लिखता है दूसरे वचन में, सुने। मोर ओवर इट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड ऑफ द स्टूवर्ड दैट ए मैन शुड बी फाउंड फेथफुल, प्रूविंग हिमसेल्फ वर्दी ऑफ ट्रस्ट। आगे दूसरे वचन में, पहले वचन में प्रिविलेजेस बताता है कि परमेश्वर ने कितनी महान प्रिविलेजेस, बरकतें, आशीषों से हमें नवाजा है। हमें अपने सीक्रेट पर्पस जो हैं, गुप्त भेद जो हैं, हमें परमेश्वर ने अपने रहस्य, हमें परमेश्वर ने अपनी छुपी हुई योजनाएं, हमें परमेश्वर ने अपने गहरे भेद दे दिए हैं और स्टूवर्ड बना दिया, ओइकोनोमिया बना दिया है।
वो हमारे द्वारा चला रहा है परमेश्वर। पृथ्वी के गहरे भेद रहस्य हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर उनको जगत में लॉन्च करता है, रिलीज करता है। हम ओइकोनोमिया हैं। लेकिन दूसरे वचन में क्या कहता है कि लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टूवर्ड है, ओइकोनोमिया है, वो ऐसा बंदा हो जो वफादार हो। मस्ट बी फाउंड फेथफुल, प्रूविंग हिमसेल्फ वर्दी ऑफ ट्रस्ट। प्रभु का बंदा, प्रभु का दास, ऐसा प्रभु का दास हो जिसको प्रभु ने अपने भेद दिए हैं, जिनको लोग जाने कि यहोवा के सर्वेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि इनके पास यहोवा के भेद हैं, यहोवा की गुप्त बातें हैं, यहोवा का गुप्त प्रकाश इनके पास है, यहोवा की योजनाएं हैं, यहोवा की इच्छा इनके पास दी है यहोवा ने। ये ओइकोनोमिया है, ये इकोनॉमी को चलाते हैं। लेकिन ये लोग कैसे होने चाहिए? फेथफुल होने चाहिए। जो ओरिजिनल ग्रीक सेंस है उसका मतलब है कि ये लोग परखे गए हों और वफादार पाए गए हों। हालेलुया। परमेश्वर की इकोनॉमी, इकोनोमिया, उसमें भ्रष्टाचार ना करने वाले हों। हालेलुया। मैं आपको 3-4 हम सीरीज़ कर चुके हैं, हसतान डायबलोस। मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान, उसे हसतान कहते हैं। मैं आपको बारीकी समझा रहा हूँ क्योंकि जगत में बहुत सारा धोखा है, बहुत सारी शैतानी शिक्षाएं, तालीमें आ रही हैं जगत के अंदर, ऑलरेडी हैं। लूसीफर जो शब्द है बाइबल में एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। असल में लूसीफर शब्द बाइबल में नहीं है ओरिजिनल टेक्स्ट में, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने लातीनी भाषा में जब इसका अनुवाद करवाया तो हीलियल को लूसीफर बना दिया। ओरिजिनल वर्ड है हीलियल, ब्राइट वन, शाइनिंग वन, रोशनी ले जाने वाला। लेकिन उसके ऊपर रोमन कैथोलिक वल्गेट ट्रांसलेशन ने लूसीफर लिख दिया है। लेकिन ये वर्ड पूरी बाइबल में कहीं दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो प्रभु उसे किस नाम से कहता है? प्रभु उसे पुकारता हसतान के नाम से। प्रभु कहता दूर हो शैतान मुझसे, हसतान। तो हसतान उसका नाम हम देखते हैं। तो दूसरा शब्द हम देखते हैं डेवल, जो मैंने बोला, आपको बताया, डियाब्लोस। डियाब्लोस जो है वो नाम नहीं है, डियाब्लोस एक टाइटल है जिसका मतलब है दोष लगाने वाला। और डियाब्लोस एक नहीं है, डियाब्लोस बहुत हैं। हालेलुया। लेकिन जो मेन डियाब्लोस शैतान है, उसका काम है एक्यूज करना। यहोवा की कोर्ट में वो जाता है। मैंने आपको टीचिंग दी है, यहोवा परमेश्वर की कोर्ट रूम्स, स्वर्ग के अंदर कोर्ट रूम लगते हैं, और उन कोर्ट रूम्स के अंदर कोई है जो आपको और मुझे एक्यूज करता है, दोष लगाता है, हमारे खिलाफ मुकदमा भी दायर करता है। प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 31-32 वचन में ये कहते हैं, जब पतरस जो है, वचन को गौर से पढ़िएगा, पतरस का नाम था सिमियन या शमाउन। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम बदला, क्योंकि शमाउन का मतलब होता है पानी में लगा हुआ सरकंडा। काना होता है ना, काना पानी में लगा होता है, जब हवा चलती है काना कभी इधर डोलता है कभी इधर डोलता है, क्योंकि पानी में उसे गहरी जड़ें नहीं मिलती। तो पतरस का किरदार था सरकंडे की मानंद। वो बिन पैंदे का लोटा था, कभी इधर डोल जाता था कभी इधर डोल जाता था। शिमयोन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चंचल है, जिसका मन, जिसके विचार स्थिर नहीं है। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे नया नाम देते हैं। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह नामकरण क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा चरित्र बदलते हैं, हमारे नाम से हमारा चरित्र जुड़ा होता है। हालेलुया। एक बार हम बपतिस्मा दे रहे थे और वहाँ पे एक भाई आए, तो पास्टर जी थे एक संघ में, वो पूछते हैं आपका नाम क्या है? वो कहता जी मेरा नाम माड़ा। तो वो कहते हैं माड़ा क्या नाम हुआ, आज से तेरा नाम होगा जकरिया मसीह। तो नाम बदलना का मतलब एक आध्यात्मिक बात है, रूहानी है, सिर्फ जिस्मानी नहीं है।
तो प्रभु उसे कहते हैं, अब वहाँ पे वर्ड प्ले है। बाइबल में भाइयों और बहनों बहुत सा वर्ड प्ले है। शब्द के संग परमेश्वर का आत्मा खेलता है। वर्ड प्ले है, पन्स हैं बाइबल में। बाइबल के अंदर पन्स हैं, वर्ड प्ले हैं, और बाइबल के अंदर एलेगोरिकल लैंग्वेज है, बाइबल के अंदर मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, बाइबल के अंदर सरकैज़म है, सरकास्टिक भाषा है, लगा के किसी को बात कही जा रही, कई सी बातें हैं बाइबल की लैंग्वेज में। जब आप बाइबल की लैंग्वेजेस का अध्ययन करोगे गहराई में जाके, तब आपको ये बातें प्रकट हों, पता लगेंगी वर्ड प्ले क्या होता है। तो प्रभु पतरस से कहते हैं, क्योंकि पतरस जो है वो कभी पतरस होता है, कभी शमाउन हो जाता है। ये बड़ी गहरी शिक्षा है। बाइबल में पढ़िए पूरे चारों इंजीलों में, कब प्रभु उसे शमाउन कहते हैं और कब प्रभु उसे पतरस कहते हैं। जब पतरस अपने पुराने किरदार में चला जाता है, पुराने जीवन वाली बातें करता है, तो यीशु मसीह उसे पतरस नहीं बुलाते, यीशु मसीह उसे शमाउन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो पतरस जो है वो शमाउन बन गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पर्पज़, परमेश्वर की योजना को प्रकट कर रहे हैं। कब? जब प्रभु यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी में गए, और मैंने उस पर आपको मैसेज दिया है। कैसरिया फिलिप्पी में क्यों गए? क्योंकि सामने हरमन पहाड़ है। हरमन पहाड़ पे वो जगह है जहाँ पे वॉचर उतरे थे, 200 वो फरिश्ते वॉचर उतरे जिन्होंने स्त्रियों के संग संबंध बनाया। वहाँ पे वो जगह है जो 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 33 डिग्री लैटिट्यूड पे पहाड़ है, वो जो बकरे के चेहरे की तरह दिखाई देता, जहाँ पे वो लैंड किए थे। वहाँ पे उन्होंने पैक्ट किया, एकता की, आपस में मिलके सम्मति की, एक दूसरे की थाइज पे हाथ रख के ये उन्होंने वाचा बांधी कि अब हम सब मिलके ये काम करेंगे स्त्रियों के साथ संबंध बनाने का, और हम सब बराबर के जिम्मेदार होंगे और हम वापस यहोवा के पास नहीं लौटेंगे। ये उन्होंने शपथ खाई वहाँ पे, यूनिटी। इसीलिए 133 ज़बूर के अंदर जो यूनिटी है, वहाँ पे लिखा है ना कि भाई लोग आपस में मिलके रहें। ये हरमन पहाड़ पे गिरती ओस की मानंद है। तो भजन लिखने वाला इशारा कर रहा है उन गिरे हुए फरिश्तों की एकता की तरफ। जब आप बाइबल जानेंगे तब आपको ये भेद समझ लगेंगे कि हरमन पहाड़ पे क्या हुआ था। वहाँ पे ही उस पहाड़ के नीचे ग्रोटो ऑफ पान गॉड है। आज आप जाएं, पान देवता का मंदिर है वहाँ पे, जो कि हेडीज़ का, नरक का द्वारपाल है। बहुत से लोग मानते हैं वहाँ से एक टनल जारी है जो नरक की ओर जाती है, और वहाँ पे लोग बकरा फेंकते हैं अज़ाज़ेल वाला। अगर वो सीधा स्लिड कर जाए, उसका ब्लड ना दिखाई दे, तो लोग सोचते हैं कि अज़ाज़ेल ने कुर्बानी ले ली। वो खैर ये गहरी बातें हैं। उसके हेड के, उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर भी है। तो उस एरिया में यीशु मसीह उन बदरूओं को चैलेंज कर रहा है, उन फॉलन एंजल्स को, उनकी रूह, उनकी जो उनके अंदर से जो सोल निकली, जो डेवल्स बन गई हैं, डीमंस बन गई हैं, उनके साम्राज्य को चुनौती दे रहा है यीशु मसीह। और पतरस और चेलों से पूछता है पहले कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है जिर्मिया है। यीशु मसीह अपने चेलों की ओर पलट के चेलों से पूछते हैं तुम बताओ मैं कौन हूँ। तो चेले खामोश होते हैं। किसी को मालूम नहीं कि ये जो हांड मांस में फिजिकल बॉडी में खड़ा है, ये दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का सृजनहार है। They did not know this secret, that God is living in the flesh. Eternal God, ageless God is in human body. तो स्वर्ग से पिता पवित्र आत्मा को भेजता है, और पवित्र आत्मा पतरस की आंखें खोलता है, और पतरस कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं तू धन्य है पतरस, हालेलुया, धन्य है तू, शमौन बार जोना, तू धन्य है। और प्रभु क्या कहते हैं उसको? साथ ही में ये कहते हैं ये बात तुझ पे लहू और मांस ने प्रकट नहीं की। प्रभु उसे कहते हैं डू नॉट ट्राई टू टेक क्रेडिट फॉर दिस रेवलेशन, for this revelation did not come because you were very smart, you were very wise and intelligent and you understood it,
You were more intelligent than the rest of the 11. But Jesus is saying, My Father in heaven has opened your eyes. जब तक पिता स्वर्ग से आंखें नहीं खोलेगा, आप ईसाई रहेंगे, आपको यीशु मसीह दिखाई नहीं देगा। यीशु मसीह का नूर, यीशु मसीह का जलाल कभी दिखाई नहीं देगा। आप चर्च जाते रहेंगे, ईसाइयत के काम करते रहेंगे, जब तक पिता आपकी आंखें नहीं खोलेगा तब तक आपका यीशु मसीह से साक्षात्कार नहीं होगा, यीशु मसीह के संग वो रिश्ता नहीं होगा, तब तक परमेश्वर का कलाम आपके ऊपर नहीं खुलेगा। आप सुनते रहेंगे, पादरी सुनाते रहेंगे आपको, जक्की चढ़ गया दरख्त के ऊपर सारे बोलो हालेलुया, जक्की उतर गया नीचे सारे बोलो हालेलुया, सुनते रहेंगे आप ये कहानियाँ। जब पिता आपकी आँख खोलेगा, तो प्रभु पतरस को बता रहे हैं कि तेरे कारण नहीं है ये। तो भाई और बहनों, अपने मत्थे पे सेरा मत बांधिएगा। कोई भी काम करता है ना प्रभु, तो प्रभु की कुदरत है। चंगाई होती प्रभु की कुदरत है, छुटकारा होता प्रभु की कुदरत है, बंधन टूटते हैं प्रभु की कुदरत है, मटीरियल ब्लेसिंग मिलती हैं, संसार की बरकतें मिलती हैं, वीज़े लगते हैं, प्रभु की ब्लेसिंग है। सेरा प्रभु के सिर बांधना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम पोस्टरों के ऊपर लिख लिख के गवाहियाँ अपना नाम बीच में घसोड़ घसोड़ के डालें कि प्रभु के बंदे ने की दुआ। अरे भाई, मैं 100 दुआ कर लूँ, अगर मेरी दुआ स्वर्ग का यहोवा पिता परमेश्वर सुनेगा नहीं तो कुछ भी दुआ का असर नहीं है। हालेलुया। अल्टीमेटली जो ऊपर मेरा स्वामी बैठा है यहोवा पिता, वो सुन के जब जवाब देगा तो सारी महिमा प्रभु को देनी चाहिए। तो प्रभु जब पतरस बताने लगते हैं, इसके बाद प्रभु बताते हैं कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, यहूदी उसके ऊपर झूठा मुकदमा चलाएंगे और उसको पकड़वा देंगे और वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। तो पतरस यीशु मसीह को साइड में ले जाके डांटता है, तेरे संग ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा तेरे संग कभी नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसी समय पतरस को डांटते हैं और क्या कहते हैं, दूर हो शैतान मुझसे। क्योंकि पतरस के अंदर कौन आ चुका है, हसतान। अभी थोड़े समय पहले कौन था पतरस के अंदर, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने उसको दिखा रहा था कि ये जीविता मसीह है, ये देहधारी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा दिखा रहा था। अभी थोड़े समय बाद अंदर कौन आ गया है, हसतान। तो कभी घमंड मत कीजिएगा, कभी गुरूर मत कीजिएगा। घमंड, गुरूर, दिखावा, शोखियाँ, इनसे दूर रहिए। प्रभु के चरणों में झुक कर रहिए, वरना वो छोड़ेगा नहीं। तो प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु पतरस से कहते हैं, शमौन शमौन, शैतान ने तुझे मांगा। लूका 22 के 31-32 में। क्योंकि अब वो फिर शमौन बन गया है, पतरस नहीं रहा। तो प्रभु उसे जब कहते हैं इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वहाँ पे बड़ी गहरी बात है, सुनिए ध्यान से। वहाँ पे ग्रीक टेक्स्ट में, जो मत्ती की अरामिक वर्जन भी है, मत्ती का हिब्रू में लिखा हुआ वर्जन भी है, तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वहाँ पे प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं तू कैफास है, कैफास, तेरा नाम कैफा है। कैफा का मतलब होता है एक बड़ा पत्थर। एक बड़ा पत्थर क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल का, 5 क्विंटल का, जिसे बंदा उठा नहीं सकता, 500 किलो का, 600 किलो का पत्थर हो, तो वो पत्थर है। और फिर प्रभु क्या कहते हैं, वहाँ पे ग्रीक में 2 वर्ड हैं। कैफास जो है ये अरमिक में है, लेकिन यूनानी भाषा में 2 शब्द हैं। यीशु मसीह कहते हैं पतरस को, यू आर पेट्रोस, तू बोल्डर बन गया, बड़ा पत्थर। शमौन, तू पेट्रोस बन गया, बड़ा पत्थर। और इस चट्टान पे, वो पतरस नहीं है चट्टान जिसके ऊपर कलीसिया खड़ी है। बेशक रोमन कैथोलिक चर्च एरोनसली ये सिखाती है कि पोप पतरस साहब पहले पोप हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं इस चट्टान पे, इस बड़े पत्थर पे मैं, तू बड़ा पत्थर है, बट क्या कहते हैं यीशु मसीह, यू आर पेट्रोस, बट ऑन दिस पेट्रा आई विल बिल्ड माई चर्च। जीसस इज यूजिंग अनदर वर्ड, पेट्रा। Petros means boulder, a big stone that is difficult to lift by human hands. Jesus is saying to Simeon, Simeon is something, that is shaken by the wind here and there. But Jesus is saying you will not be shaken by every whimsical wind. You will be a rock, a stone, a big boulder. But I will build my church on this Petra. Jesus is not building the church on Petros. The church of Jesus
is not standing on human being. The Church of Jesus is firmly established on who He is. The Church is built in the nature, in the character, in the attribute, in the power, in the strength of the Lord God Almighty. Hallelujah. On this Petra. Now what Petra is? Petra is a rock that is coming from beneath. Petra is like Gibraltar rock. Rock that is coming from the womb of the earth. That rock is Jesus. And on this rock I will build my church. वो चट्टान कौन है? वो चट्टान है यीशु मसीह, अबदी चट्टान. उस चट्टान के ऊपर कलीसिया को परमेश्वर कहता है मैं बनाऊंगा. हालेलुया. जब कलीसिया खड़ी है अबदी चट्टान पे, जो स्वयं परमेश्वर है. और प्रभु क्या कहता है? सामने नरक के फाटक हैं. पान देवता का टेम्पल है सामने उस माउंटेन पे, हरमन पहाड़ में, उसके बॉटम में. और यीशु मसीह कहते हैं, उस तरफ देख के कहते हैं, गेट्स ऑफ हेल, हेडीज़ के, हेडीज़ वर्ल्ड है वहाँ पे, इसके जो फाटक हैं वो मेरी कलीसिया पे जयवंत नहीं होंगे. भाइयों और बहनों, जो सच्ची कलीसिया है, मैं अपोस्टेट चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मजहबी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्ची कलीसिया की बात कर रहा हूँ. सच्ची कलीसिया जो मेमने की दुल्हन है, जो मेमने के लहू से श्रृंगारी गई है, जिसे कलाम के निर्मल पानी से रोज धोया जाता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को, हुक्मों को, व्यवस्था को अपने दिल में लेके चलती है. उसकी कुप्पी में तेल है, उसकी मशाल जल रही है. वो जो सच्ची दुल्हन है, जिसने अपने आप को संसार से, संसार के गंदे कामों से अलग किया है, वो सच्ची दुल्हन जो मेमने की प्रतीक्षा कर रही है और मेमने के लिए जीती है, वो सच्ची कलीसिया के ऊपर नरक के फाटक कभी गालिब नहीं होंगे. उनको कोरोना छू नहीं पाएगा, पेस्टिलेंस छू नहीं पाएगी, अंधकार छू नहीं पाएगा, आ रही है वो छू नहीं पाएगी उन्हें. ये यीशु मसीह का वायदा है. हालेलुया. थैंक यू जी. तो पढ़िएगा, प्रभु पतरस को फिर शिमौन कब कहता है? जब शिमौन पुराने किरदार में चला जाता है. हमारे संग, आपके संग भी ऐसा होता है. आप भी अपने पुराने किरदार में चले जाते हो. जो नया नाम प्रभु ने दिया होता है उसके अनुरूप नहीं रहते आप. हालेलुया. तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, प्रभु का दास, कि हमें परमेश्वर ने मिस्ट्रीज दी हैं, अपने गहरे भेद हमें सौंपे हैं. जो मैंने वचन आपको पढ़ा 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 1, फिर पढ़ता हूँ. सो देन लेट us, और ब्रैकेट में लिखा, let the apostle be looked upon as ministering servants of Christ and stewards, here he says in bracket, trustees of the mysteries, the secret purposes of God. प्रेरित पौलुस क्या कहता है? हमें कैसे जाना जाए? हमारी कब्र के ऊपर क्या लिखा जाए? हमारी कब्र पे लिखा जाए कि हम मसीह के नौकर हैं और परमेश्वर के रहस्य, परमेश्वर के राज्य के भेद, परमेश्वर के राज्य की गहरी बातें, परमेश्वर के गुप्त पर्पसेस जो हैं, परमेश्वर की छिपी हुई इच्छा, परमेश्वर के गहरे प्रकाश, उनके हम ओइकोनोमिया हैं, स्टूवर्ड हैं, ट्रस्टी हैं. ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जहाँ से इंग्लिश का वर्ड निकलता है इकॉनमी. स्वर्ग के राज्य की इकॉनमी परमेश्वर ने हमारे हाथ में दी है. ये प्रेरित पौलुस कह रहा है. और कह रहा है कि जो प्रभु के स्टूवर्ड हैं, जिनको इतनी बड़ी प्रिविलेज मिली है, उनको अपने आप को प्रूव करना है कि वो परमेश्वर के ट्रस्ट के लायक हैं या नहीं. जो प्रिविलेज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने उन्हें दी है, उसके लायक उनको अपने आप को प्रूव करना है. प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, प्रूव योर कॉलिंग, अपनी बुलाहट का प्रमाण दे, सबूत दे. हालेलुया. तो मैं अब आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ. रोमन्स चैप्टर नंबर 16 में चलिए. रोमियो की पत्री, उसका 16 अध्याय और उसका 25 वचन. नाउ टू हिम हु इज एबल टू स्ट्रेंथन यू इन द फेथ which is in accordance with my gospel and the preaching of concerning Jesus the Messiah, according to the revelation, the unveiling of the mystery of the plan of redemption, which was kept in silence for secrets for long ages. Hallelujah. देखिए कितना अद्भुत स्क्रिप्चर है. रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 25 वचन.
सुनिए, मैं पंजाबी में आपके लिए पढ़ता हूँ। पंजाबी की बाइबल आज मेरे पास। हालेलुया। सुनिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा, हुण उस दी जो मेरी इंजील दे ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸ ਭੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 26 ਵਚਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਬੀਆਂ ਦਿਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਚਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਅਦੁੱਤੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਾਂ उसे दी यस्सु मसीह के द्वारा युगो युग महिमा होवे आमीन। क्या कह रहा है? मैं 25 वचन फिर एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़ता हूँ। दिस इज़ द एम्पलीफाइड वर्जन। नाउ टू हिम हु इज़ एबल टू स्ट्रेंथन यू इन फेथ, अब वो जो तुम्हें विश्वास में दृढ़ कर सकता है, विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद माई गॉस्पल एंड द प्रीचिंग ऑफ कंसर्निंग जीसस क्राइस्ट, जो मेरे सुसमाचार के मुआफिक है। प्रेरित पौलुस को एक इंजील दी गई, गॉस्पल दी गई। वो जो गॉस्पल प्रेरित पौलुस को दी गई वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रकाश के द्वारा दी है। पढ़िएगा गलतियों की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखता है, जब मेरी यीशु मसीह से मुलाकात हुई, जब प्रेरित पौलुस जा रहा था दमस्कस, वहाँ से अथॉरिटी का लेटर लेने के लिए, ताकि जितने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने वाले लोगों ने जेलों में डाले, तो आकाश से एक रोशनी का खंबा नीचे उतरा, स्वर्ग से नूर का खंबा। उस नूर के खंबे में जलाली यीशु था और जलाली यीशु से शाऊल की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद शाऊल पौलुस बन गया। हालेलुया। और घुटनों पे आके कहता है, रब प्रभु लॉर्ड मुझे बताइए, कुरियाकोस मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो हनन्याह जब उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है, उसकी आंख से मज़हब के छिलके गिरते हैं। वो धर्म के छिलके थे, यहूदी धर्म के, जो पौलुस की आंखों से गिर जाते हैं और पौलुस को दिखाई देता है। और पौलुस क्या लिखता है गलतियों की पत्री में? पौलुस लिखता है, उसके बाद मैं यरूशलेम नहीं गया कि पतरस, याकूब, यूहन्ना, बरथोलोमियो, थद्दी को मिलूं, उनको अपनी गवाही बताऊं। कहता वहाँ से पवित्र आत्मा ने सीधा मुझे सऊदी अरेबिया में भेजा। आपको मालूम, मैंने आपको बताया, जहाँ पे यहोवा परमेश्वर उतरा और इज़राइल को अपनी व्यवस्था दी, सिनई पहाड़, वो सिनई पहाड़ मिस्र में नहीं है। वो हालेलुया, वो सिनई पहाड़ मिस्र में नहीं है भाई और बहनों। वो एक कमर्शियल स्पॉट है जिसे ले जाके लोग दिखाते हैं। वो असली सिनई पहाड़ सऊदी अरेबिया में है और उन पहाड़ों का नाम है माउंट ऑफ अल जबाल। आप गूगल सर्च करें, मैप्स में जाके आपको पहाड़ दिख जाएंगे, सैटेलाइट से गूगल सर्च करके। उन माउंट का नाम है अल जबाल। सऊदी अरब की सरकार उन्हें अति पवित्र पहाड़ मानती है। वहाँ पे लोग जा नहीं सकते, बहुत कम लोग वहाँ पे गए हैं। वो सिक्योर्ड टेरिटरी है। उन पहाड़, जो वो पहाड़ है, आज भी जले हुए हैं आग से, जहाँ पे यहोवा उतरा था। उसी जगह प्रेरित पौलुस को लेके गया पवित्र आत्मा। गलतियों की पत्री पढ़ लीजिए। वहाँ 3 साल रहा पौलुस, उस बियाबान में, उस रेगिस्तान में, और वहाँ पे यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को सुसमाचार दिया। प्रेरित पौलुस कहता है, जो सुसमाचार का मैं प्रचार करता हूँ वो मनुष्यों के अनुसार नहीं, वरन वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने मुझे दिया है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस लिखता है, हम परमेश्वर के स्टूवर्ड हैं, परमेश्वर की मिस्ट्रीज़ के, परमेश्वर के गहरे भेदों के भंडारी हैं। हम कस्टोडियन हैं, हमें सौंप दिए गए वो गहरे भेद। लेकिन भाइयों और बहनों, इस समय बहुत कम ऐसे प्रभु के दास हैं जिनमें आपको ये लगेगा कि इनके पास ये भेद हैं प्रभु के। बहुत कम, क्योंकि बहुतेरों ने, परमेश्वर ने जो कुछ उनको दिया था उसको उन्होंने दबा के बेचा है, कमर्शलाइज किया है, उसकी पूरी पब्लिसिटी की है, उसकी एंटरप्राइज बनाई है, उसकी ट्रेडिंग की है गलत ढंग से, हर चीज़ को बेचा है प्रोडक्ट बना के। यीशु मसीह को भी प्रोडक्ट बना के बेचा है, अभिषेक को प्रोडक्ट बना के बेचा है, भविष्यवाणियों को, प्रोफेसाय पापा, हियर इज़ अ प्रोफेटिक वर्ड, देयर इज़ अ प्रोफेट। अरे भैया, कहाँ ऐसी, कौन सी बाइबल पढ़ रहे हो आप?
कहाँ आप देखते हो प्रोफेसाई पापा? कहाँ देखते हो आप प्रोफेसी ऑन डिमांड? वेयर डू यू सी इट? कहाँ देख रहे हो बताइए मुझे। बिलाम का रूह है ये, बिलाम का। आ रहा हूँ, काले रंग का तेरा गेट है, तेरे घर में आ रहा हूँ। दिस इज ऑल विच क्राफ्ट। अफ्रीका के अंदर भरा पड़ा ये विच क्राफ्ट। आप मेरे वचन मार्क कर लीजिएगा, आप शीघ्र इन लोगों का न्याय होता देखेंगे। You will see them fall. You will see so many mega churches fall. You will see severe judgment of God fall who have corrupted the word of God and who have whored with the anointing, prostituted the anointing, and who have turned the sacred things of God into merchandise. तो ये भेद हैं, स्टूवर्ड हैं इसके। अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, फिर मैं बाकी शाम को कंटिन्यू करूँगा। मैं चाहता हूँ आप जल्दी से निकालिए इज़िक्यल नबी की किताब। इज़िक्यल नबी की किताब। आपको मालूम पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई। नो प्रोफेसी केम बाय द विल ऑफ मैन बट होली मैन दे वर मूव्ड बाय द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। होली मैन थे वो, अनहोली नहीं थे, ऐसे मर्चेंट नहीं थे। होली मैन एंड women of God, they were moved by the Spirit of the Lord and they prophesied. तो मैं अभी आपको एक वचन देता हूँ, फिर हम उसे इवनिंग में कंटिन्यू करेंगे। 28 चैप्टर ऑफ इज़िकियल में चलिए जल्दी से। 28 चैप्टर इज़िकियल, वचन उसका मैं पढ़ता हूँ 14 से आपके लिए, सुनिए ध्यान से। You were the anointed cherub that covers with overshadowing wings, and I set you so. You were upon the holy mountain of God. You walked up and down in the midst of the stones of fire, like the paved work of gleaming sapphire stone upon which God of Israel walked on the Mount Sinai. Mount Sinai, Exodus 24:10 पढ़ लीजिएगा। क्या करता था ये? You were anointed cherub that covers with the overshadowing wings. I set you so. You were upon the holy mountain of God. You walked up and down. Up and down चलता था। Up and down किसके बीच में चलता था? Stones of fire. ये stones of fire क्या है? ये अंजालिक बीइंग हैं, अग्नि के बने हुए, आग के बने हुए स्पिरिट बीइंग हैं, जिनके बीच में अप एंड डाउन चलता था ये। अब क्या हुआ? अय्यूब की पुस्तक पढ़िएगा, पहला अध्याय। वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा वहाँ पे? वहाँ पे लिखा है बिनाए हा एलोहीम, परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सन्मुख आए, एंजल्स। बिनाए हा एलोहीम, जहाँ भी बिनाए हा एलोहीम शब्द है वो एंजल्स हैं। लोग आर्ग्यू करते हैं ना जेनेसिस 6 में कि बिनाए हा एलोहीम जो है वो सेथ की औलाद है। एब्सोल्युटली फॉल्स टीचिंग। बिनाए हा एलोहीम जहाँ भी ओल्ड टेस्टामेंट में आया, इट सिग्निफाइज दी एंजल्स। तो बिनाए हा एलोहीम आए, उनके संग हस्सतान आया, शैतान आया, और प्रभु उससे पूछता है तू कहाँ से आया है? तो वो क्या कहता है? कहता है पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम के। अब हस्सतान बन गया है वो। हालेलुया। नाउ ही इज बिकम हस्सतान, और वो खैरब है, खैरब, कैरुबीम। He is a powerful being. You cannot mess up with him. If Jesus is not in you, if Jesus is not with you, if you are not walking right under the blood of Jesus, and if you are not doing everything in the name of Jesus, he will screw up your life in a bad way. समझ रहे हैं आप? He is cherub. He is dominant force. He is not an angelic being. He is cherub, Hebrew word. खैरब का मतलब होता है डोमिनेंट बीइंग, पावरफुल बीइंग, द वन हु ग्रैब्स, द वन हु ग्रैस्प्स। तो प्रभु इसके विषय में अद्भुत बातें बता रहा है। ये अप एंड डाउन चलता था लिविंग बीइंग्स के बीच में, हालेलुया, और अपने पंख फैलाता था। और क्या लिखा है इसके विषय में कि परमेश्वर ने इसके अंदर ही, मैं बाद में इवनिंग में करेंगे इसके ऊपर मनन, परमेश्वर ने इसे सिंथेसाइजर बनाया था। गॉड क्रिएटेड ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स in him. He would open up his wings, mighty glorious melodies will be created. संगीत गूंजता था यहोवा के थ्रोन के सामने, होली माउंटेन पे म्यूजिक गूंजता था जब लूसीफर अपने पंखों को ऊपर नीचे करता था। और कवरिंग गार्जियन बीइंग है ये,
परमेश्वर की पवित्र हजूरी को प्रोटेक्ट करता था होली माउंटेन पे। सारे साज इसके अंदर ही थे। अभी आप तो साज खरीदते हो ना, हमें कीबोर्ड लेना पड़ता है, तबला लेना पड़ता है, गिटार लेना पड़ता है, अकॉर्डियन लेना पड़ता है, सब साज खरीदने पड़ते हैं। उस समय कोई साज खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। यहोवा ने सारे साज इसके अंदर बनाए थे। आपको मालूम, ध्यान से सुनिए, म्यूज़िक, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो पृथ्वी पे नहीं बनी। सारे गामा पाधा नीसा, ये सुरें, ये पृथ्वी पे नहीं बनाई गई, ये यहोवा ने बनाई हैं स्वर्ग में। गॉड क्रिएटेड म्यूज़िक। ये जो फरिश्ता है ये म्यूज़िकली लीड करता था हेवनली कॉयर्स को। सारे एंजल्स, अगर आप 38 चैप्टर पढ़िएगा अय्यूब की किताब में 38 चैप्टर आप पढ़ें, एक बड़ी अद्भुत बात वहाँ पे लिखी है। हालेलुया। 38 उसका 7वां वचन पढ़ता हूँ, अय्यूब 38 का 7। When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy। ये अनंतता की बात कर रहा है यहोवा परमेश्वर, सवाल कर रहा है अय्यूब से। लगभग 60 सवाल किए यहोवा ने कि मुझे जवाब दे। तो प्रभु पूछता, क्या तू वहाँ पे था? When the morning stars sang together, जब भोर के तारे गाते थे। ये भोर के तारे हैं बहुत सारे। एंजल्स की 2 डिवीजन यहाँ पे बताता है अय्यूब। एक है मॉर्निंग स्टार और दूसरा है बिनाए हा एलोहीम, परमेश्वर के पुत्र हैं, और दूसरा मॉर्निंग स्टार हैं। तो जो लूसीफर है, जिसका असली नाम है हीलियल, ही इज कॉल्ड द सन ऑफ द मॉर्निंग। और यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 22 के 17 में अपने आप को कहता, आई एम द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और ये सुबह चमकता है 3 बजे के करीब। ये तारा, इसको वीनस कहते हैं, प्लैनेट वीनस। बहुत ही प्रचंड तेज है इसका बाकी तारों से ज़्यादा। तो ये क्या करता था? 28 में मैं वापस आता हूँ, इज़िकियल 28:15 में, यू वर ब्लेमलेस इन योर वेज फ्रॉम द डे यू वर क्रिएटेड अंटिल इनिक्विटी एंड गिल्ट वर फाउंड इन यू। तू, इज़िकियल 28 के 15 में प्रभु कहता है, तू ब्लेमलेस था, तेरे में कोई कमी नहीं थी, ऐब नहीं था। जिस दिन से तुझे बनाया गया तेरे में कोई ऐब नहीं था। पर इनिक्विटी, मैंने आपको इनिक्विटी पे 3 घंटे की शिक्षा दी है, 3 से भी ज़्यादा की। इनिक्विटी के लिए वर्ड है अवान, डीएनए में रहने वाला पाप, जो आपके अंदर गहरा पाप रहता है, आपकी नेचर बन जाता है। इनिक्विटी इज योर सेकंड नेचर। यू डू नॉट ऑपरेट ऑन योर ओरिजिनल नेचर, यू फंक्शन ऑन योर नेचर एट डिफॉल्ट। जो शैतानी नेचर है, ये यहाँ पे क्रिएट हुई ये नेचर इनिक्विटी से, ये डीप सिन है। एंड गिल्ट वर फाउंड इन यू, तुझ में पाए गए। कैसे? 16 वचन पढ़ें। थ्रू द अबंडेंस ऑफ योर कॉमर्स, यहाँ पे वर्ड है ट्रेडिंग। लूसीफर ट्रेडिंग करता था। You were filled with lawlessness and violence, and you sinned. Therefore I cast you out as a profane thing from the mountain of God. The guardian cherub drove you out from the midst of the stones of fire. जहाँ पे ये वर्शिप लीडर था, परमेश्वर के सिंहासन को प्रोटेक्ट करता था, यहोवा ने इसे 9 स्टोन दिए थे। These 9 stones are like skin he had, 9 skins. And on the top was gold. ये ट्रेडिंग के लिए स्टोन्स दिए जाते हैं। ट्रेडिंग, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रेडिंग होती थी इवनिंग में। यहाँ पे लिखा है, तेरी ट्रेडिंग में फॉल्ट पाया गया, तेरी ट्रेडिंग में आवान पाया गया, इनिक्विटी पाई गई, और यहोवा ने एक गंदी घिनौनी वस्तु की तरह तुझे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। हालेलुया। हम लोग शाम को फिर इकट्ठा होंगे और फिर इसे हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। विल कंटिन्यू व्हाट ट्रेडिंग शैतान यूज्ड टू डू। ट्रेडिंग क्या है, इस वचन से सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। और मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता, इफ़ एनीबॉडी फील्स लाइक सोइंग अ सीड, कोई बीज बोना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर प्रभु आपके दिल से बात करे तो आप अवश्य ऐसा कीजिए। द लॉर्ड ब्लेस यू।
लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है आपके लिए। प्रभु आपको लीड करे तो आप अवश्य बीज बोइए प्रभु के लिए। यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।